Hello students, welcome to our YouTube channel Sri Ambika Online Classes. Here you will get all the study material related English grammar and books. So today I am going to explain you about sentence and its types. So before explaining you the types of the sentence, let me explain you the definition of sentence. What is sentence? So a sentence is a group of words. It means that a sentence इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि ये जो सेंटेंस होता है जो बहुत सारे वर्ड्स का क्या होता है ग्रुप होता है। बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस को बनाते हैं। साथ ही साथ दैट मेक कंप्लीट सेंस। इट मीन्स दैट द वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस शुड क्रिएट अ मीनिंग। जितने भी सेंटेंस में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उन वर्ड्स का एक प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, एक सेंस निकलना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं है। आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि क्या सेंटेंस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेंटेंस होती है और कौन कौन से सेंटेंस नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट, सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। इट मीन्स sentence always, whenever you are going to write any sentence, it always starts with a capital letter। मतलब कैपिटल लेटर से ये स्टार्ट होता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कभी भी हम लोग स्मॉल लेटर्स का यहाँ पर यूज़ नहीं करते। सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं फुल स्टॉप से। सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से क्या होते हैं, एंड होते हैं। विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। कुछ सेंटेंस होते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ में एंड होते हैं और कुछ होते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ में एंड होते हैं। ओके, हियर आर दी पार्ट्स ऑफ दी सेंटेंस। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। जितने भी सेंटेंस होंगे उनके सबके टू पार्ट्स होंगे। वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। सेंटेंस, एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। So let me explain you what is subject and what is predicate. So the first part of the sentence that tells what a sentence is about. It means that subject mean that doer of the action, the person who is doing the work, whoever is doing the work is called subject. Doer means करने वाला, किसी भी काम को करने वाला पर्सन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। इन द सेकेंड पार्ट, एज इट इज़ रिटन प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ये हमेशा सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ हमें बताता है। इट मीन्स दैट व्हाट इज बीइंग डन अपॉन द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट पे क्या काम हुआ है। So here I have given you one example to understand what is subject and what is predicate. So here it is written Ram. Ram writes a letter. So Ram is a subject because he is doing the work. He is the doer of the action. That is why he is the subject. He is the subject. Further it is written writes a letter. So writes a letter is a predicate. Here I have divided it by the two arrows. One is the Ram and another one is writes a letter. So in this sentence we learn the Ram writes a letter. It means that Ram is a doer of the action. That is why he is the subject, and writes a letter, it is the second part of the sentence. That is why it is the predicate of the sentence. I hope you understand it. Now here is types of sentence. There are different types of this sentence which we use in grammar. The first one is declarative sentence.
What is declarative sentence? I will explain you. All the types of the sentence I will explain you. Interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. These are the 4 types of the sentence. Again I am repeating, there are 4 types of the sentence. First one is declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. So let me explain you in detail now. So let us understand first what is declarative sentence. आइए समझते हैं सबसे पहले कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. सो एज यू कैन रीड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इट मीन्स दैट इट डिक्लेयर समथिंग. यस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक द स्टेटमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये स्टेटमेंट बताते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में स्टेटमेंट बताते हैं, दैट व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे डज, ओके, what they did, everything. So there are 2 kinds of the declarative sentence. First one is affirmative and negative. Affirmative means no need to use any question mark or to ask any question, or no need to use of no or not. इसका मतलब ये है कि हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार के नो, नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, और वहीं अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वहीं नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका यूज़ करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को समझ में आना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, अफर्मेटिव सेंटेंस, दो सेंटेंस इज सिंपली से और स्टेट समथिंग. इनका यूज़ किसके लिए यूज़ होता है? सिंपली से और स्टेट समथिंग के लिए, कुछ भी बताने के लिए इनका यूज़ होता है. लेकिन कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नो मतलब नहीं का यूज़ नहीं होगा, और दूसरा कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा. नेगेटिव, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें दिस सेंटेंस एक्सप्रेस नेगेटिव मीनिंग, मतलब हमेशा कुछ भी काम होता है कि नहीं, नो, आई डोंट नो, ये सारे सेंटेंस नेगेटिव होंगे. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. आई लाइक टू ईट मैंगोज़, कि मुझे मैंगोज़ खाना, मुझे आम खाना पसंद है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया. हियर द अनदर वन इज़ आई डोंट लाइक टू ईट मैंगोज़. एक मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया कि मुझे आम पसंद नहीं है, मुझे आम खाना पसंद नहीं है. तो एक मैंने अफर्मेटिव बताया आप लोगों को, स्टेटमेंट दिया. दूसरे में भी स्टेटमेंट ही है, लेकिन एक में अफर्मेशन है, किसी भी प्रकार के नो एंड नॉट का यूज़ नहीं है, कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. और सेकंड है जो नेगेटिव चीज़ें बता रहा है, नकारात्मक चीज़ें बता रहा है. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज यूज टू आस्क, as I can explain you in the simple way. Interrogative sentence is used to ask any questions. Interrogative sentence का जो यूज़ होता है वो किसी भी questions को पूछने के लिए किया जाता है. As I have defined here in the definition, interrogative sentence ask a question and it is formed by auxiliary verbs. Here I have defined what are auxiliary verbs. Before the noun or by beginning of the sentence with a WH and ending with a question mark. मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती है और कौन से WH वर्ड होते हैं, कब हम लोग नाउन के आगे कैसा यूज़ करते हैं. सो हियर आई हैव गिवन द 2 एग्जाम्पल्स. डू यू लाइक रीडिंग? इट मीन्स दैट यू इज़ अ नाउन and before noun I have used here do. As I have explained here, do is a auxiliary verb, and here second, it is used to ask WH word, starts with WH word like what, where, why, when, who, whose. Such sentences are used to ask. In the second sentence I used what are you doing. So what is started with WH sentence, that is why we can also call it WH sentences. Third one is imperative sentence. Imperative sentence expresses request. Here I have defined command or advice or
suggestion. It means that imperative sentence is used to ask any suggestion, request to give any suggestion or any advice. So let us understand the example. Go to your home. Go to your home. This is a command. We are giving just order to any person that he or she must go to his or her home. So it is a command that he must has to follow. Second one is request. Here we are requesting, please don't call me. Please don't call me. The please word is itself is a requesting word. Suggestion, we should obey our elders. So it is a suggesting word. So I hope that you have understand imperative sentence. Again I am repeating, again I am going to explain you imperative sentence. Imperative sentence express request. How request? Please don't call me, please give me some money, please don't beat me, don't fight with me. These are the requests. Father, can I go to watch movie? Here we are taking the permission or request. We are requesting to a parent to use command. So go to your home, do your own work. These are the commanding words. And the last one is suggesting or advising, advisory verb. We should obey our parents. Here we are giving just suggestions. The last one part is exclamatory sentence. It is used. Exclamatory sentence express sudden strong फीलिंग्स. सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को यूज़ करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं. कभी कभी हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, डिलाइट हो जाते हैं, ग्रीफ या दुख में होते हैं, तब हम लोग ऐसे सेंटेंस को यूज़ करते हैं. तो आइए देखते हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट. हुर्रे वी हैव ऑन द मैच. कभी कभी हम लोग ज़्यादा खुश होते हैं, जॉय प्रसन्नता के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं हुर्रे वी हैव ऑन द मैच. द नेक्स्ट वन इज हाउ प्रिटी दिस बेबी इज. हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं किसी भी बच्चे को देख के, किसी भी वस्तु, किसी भी नाउन को, किसी भी चीज़ को देख के हम लोग ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं. तो ये हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. समटाइम क्या होता है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और हम लोगों को सडन लग जाती है, तो हम लोगों के माउथ से निकलता है ऐसा वर्ड आउच. तो ये आउच का जो हम लोगों ने यूज़ किया है, ये भी एक क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. As I explained you, a sentence always starts with a capital letter. So here I have explained a sentence. I like to eat mango. In this sentence, the I is capital because it is the starting word. That is why it is capital. And at last, I have put it here the full stop. So the definition is a sentence is a group of words. Here are many words. So a sentence is made of many words. बहुत सारे वर्ड से मिलकर ये बना है. At end, always a sentence ends with a full stop. हमेशा जितने भी सेंटेंस हो गए वो हमेशा किससे एंड होंगे? या तो फुल स्टॉप से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से वो सेंटेंस एंड होंगे. इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होंगे. ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है. और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो हमेशा या तो स्टार्टिंग में या फिर एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ वहाँ पर होगा ही होगा. अगर किसी भी सेंटेंस में बोल रहे हैं तो या तो स्टार्टिंग में किसी वर्ड के बाद में या फिर सेंटेंस के एंड में अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अगर ये इस टाइप का सेंटेंस से एंड हो रहा है या कुछ भी लिखने के बाद में एंड हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हुर्रे और ये स्टेप से दिया है, तो ये लास्ट में जो है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, जिससे कि हम ये पता लगा सके कि ये कौन सा सेंटेंस है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर.
Thank you.